ये हटा ली। भारत ये हटाओ कैमरा, ये बैनर हटा दी। हाँ। To everybody, I like to thank all our members who have joined our national seminar and those who have contributed. So really, your presence in the seminar made a great result for organizing the seminar very nicely. Some of the members had not joined the seminar, so for them, yesterday we had dispatched their dockets containing a souvenir and diary as well as stickers. Now, I like to welcome all the participants who joined today in the webinar. Today, since Mr. Harshit is not there, so will and myself and MK Sivas, the vice president, will manage the programs. Actually, today we are some out of the syllabus. Some of our colleagues have decided that since in March is coming and solvency certificate will be required, so why don't we invite some concerned persons from state excise department. So I had been to there. The DO of the Kanpur city was not available in that day. So he had engaged one inspector of the concerned department. Of course, he has not yet joined, but he will join in the meantime. Meanwhile, we can start our discussion. Our MK Sivastava, Vice President, will and Anand Singh, both they will initiate and they will discuss. Meanwhile, he will also join. Of course, he will not speak much because they are not. I mean, they are not lecturers. They are good, so they are working. So he will be there. Maybe anytime he can come. Um, so I like to welcome all of you. I like to welcome Dr. Raghuraj Singh. He now has taken the charge of honorary chairman of Institute News Kanpur Local Center, and since he will be with us for next 2 years, so it will be wise to introduce him to all of us. Since this is his first appearance to us, so we should introduce him. So I have been given the responsibility to introduce him. Now, Dr. Raghuraj Singh, he is the professor in HBTU Kanpur. He's in computer science department. So I'll go through some brief biodata of him. I'll start from the examination, that is education qualification. He had done BTech Computer Science and Engineering from HBTA Kanpur during 1990, and then MS Software Systems, BITS Pilani during 1997, and he did his PhD Computer Science and Engineering from UP Technical University, Lucknow. This is a small education qualification. So I like to tell about his professional experience. He was assistant professor in Birla Technical Training Institute, Pilani during 1991, and then CR State College of Engineering, Murthal, Sonepet, Haryana from 91 to 98. Then HBTA Kanpur as an associate professor during 98 to 2007. Then after that, he became the professor, and still he continued. He is the professor in computer science department from 2007. He has taken a number of administrative experience. Few of the important ones there. He was the registrar in HBTA Kanpur during 2006. Then control of exam pinning also in HBTA. Then nodal director officer REC Bijnor. Then nodal officer Lucknow during February. Then director Kamala Nehru Institute of Technology Sultanpur during 2017. Then head of the department, he has taken the charge of as the head of the department for completed 4 tenures, starting from 2004 to 2013. Then he became the coordinator of total quality improvement programs during 2021. Then dean during 2021, dean planning and research during 2018 to 20. Then dean research and development during 2025, which at present he continued. Then he is the member of various institute. Important among them are Indian Society for Technical Education, then fellow member of Institute of Engineers, fellow of IIT, a senior member of Computer Science of Education. Then he had given a number of research projects. He had supervised 29 projects. Then he MTech supervision under him was 31, and patents 1 have been granted and 3 have been published. The research paper he has published 2,210 research papers. Then he has written books, 8 books. Then consultancy projects, he had completed 5 projects.
Then he had invited expert lecture delivery. 53 lectures he had delivered as a invited expert lectures. Then he had conducted our conference. He has organized 31 conferences during his education period. This is a small brief of Dr. Raghuraj Singh. He is the chairman of our Institute of Engineers India, Kanpur Center. He will be with us from next 2 years. So I like to welcome him, and I like to request him to speak something to our members. Dr. Raghuraj Singh, please. Thank you, Engineer S.S. Darji, for giving a comprehensive my introduction. At the outset, I would like to express my thanks and gratitude to Engineer S.S. Das, President of All India Valuers Association, Engineer M.K. Srivastava, Vice President, Engineer Lalit Kant Mishra ji, General Secretary, Engineer R.K. Srivastava, who is Honorary Secretary of Institution of Engineers, Kanpur Local Chapter, Shri Alok Singh ji from Central Excise Department, who is the speaker for the today's discussion or the seminar, all the office bearers of All India Valuers Association, as well as the Institution of Engineers, Kanpur Local Chapter, and various other participants of this discussion. It really gives me immense pleasure to acknowledge that the All India Valuers Association has organized this online webinar on a topic which is very much important for the discussion. It is related with that how the solvency issues will be addressed with the help of valuation process. I am actually not aware about that what are the duties and responsibilities, or you can say what are the aims and objectives of the All India Valuers Association. But I am sure that the association will be able to meet out all its goals and objectives which have been or which it has been constituted. And along with this, I have been told that this webinar is organized on the first Saturday of every month. So I am happy to note that the association is organizing this kind of discussion webinar, or you may call it as a seminar, on every first Saturday of every month. And they are discussing or making aware with the participants with the various topics which will be of the current importance. So in this line, I would like to appreciate the efforts which are made by the association for organizing these kind of valuable activities through its umbrella, which is covering all the other activities along with this seminar activity. So I convey my sincere thanks and gratitude to all the team of organizers who has devoted time to organize this activity. Thank you very much for giving me this opportunity to interact with such an august gathering. Thank you, sir. Thank you, Dr. MK. Hello. Start. Thank you, Dr. Raghuraj Singh ji, for nice comments and nice address to our association members. Now, I have been given the responsibility to introduce the guest of today, but unfortunately he has not joined so far. I just say that Mr. Alok Singh, who is the guest speaker today, is the inspector in excise department, and he is associated with the district authority of excise department. I think he shall be joining at some later stage. Now, instead of waiting for his joining, I shall request all the members to discuss on this topic because it is very relevant topic.
that valuation for solvency purpose, which is being given in the excise department for issuing the license for liquor, etc., which is scheduled to be held in the month of February and March. So it is a very important topic. So I would like to call all the members to raise their hand and say something about this topic. Sir, before the discussion starts, I would like to request somebody of you to kindly make us aware about the various India Valuers Association, so that at least we may be aware about its various responsibilities. Because I am completely unaware about that what are the responsibilities of the All India Valuers Association. So anybody who is conversant about this may just give a brief introduction of this association. Raji, you please. Okay, thank you, sir. Actually, what the valuers are doing, that I'd like to tell you. The main minimum qualification of the valuers are they are degree holder, minimum is either BTech or MTech from civil in any branches, and they are also architect. So they, instead of going in the service, so they are practicing as a valuers for different banks, income tax department, labor department, and other concerned departments. So they got registered from Ministry of Finance, Government of India, and start working as the registered valuer. Some of the members with us are after retirement they are also doing as a valuer. So this is the valuer profession. This is some introduction about the valuers. So some of the valuers are doing without getting any service, and just after completing the degree, so they are starting practicing as a valuers. And after 10 years of degree only, income tax gets the registration as a registered valuers, and after that they become the eligibility for to work as a valuer as a Government of India registered valuers, and then work for the banks. To safeguard the interest of the valuers members, the association had been started during 2020, and we are completing. We have already completed 5 years, and we are working to in each and every steps. We are helping our valuers members. Now, throughout India, we have around 500 members, and we have set up 24 centers throughout India, and we have covered 19 states. We have members from 19 different states. Of course, in some of the states, we have members are very less. Still, then we have covered 19 states within 5 years. Actually, what happens, like other professions and like in service also, some problems arises. So to safeguard that, we work for the valuers, and for the same interest of the valuers, we have gone to High Court and Supreme Court also, because sometimes we found that the interest of the valuers are not safeguarded by the concerned department, the banks. So to safeguard that, we work on that also. And this, for example, we had taken the stay against PNB in indemnity issue. So we are working on that to help the valuer members. As you know, you had actually didn't get time to join us in the seminar. Apart from the monthly webinar held on first November, first week of first Saturday of the month, we also organizes national seminar in each and every year. National seminar. This also, I think 132 valuers members are registered, and from 7 or 8 states, the delegates are come to us. They deliver good lectures, and this time DM Kanpur was supposed to be the chief guest, but he didn't come. But Arun Pathak, who was the MLC of UP Leicester, are joined as the chief guest, and the principal of Kanpur Polytechnic, Government Polytechnic, has joined as the guest of honor. So this is how we work for the members, and this we are working from the last 5 to 6 years. 2020 in June we had registered at the All India Valuers Association, and still then we are working on that. Rabraji, please. Thank you, sir. Thank you so much for giving a elaborative description of the association. We get also help from institutional engineers as well as when our guest comes, we arrange for the guest houses. So institutional engineers also provide guest rooms for us,
and also UPTTI director. He also provide. This time, of course, we did not require the guest rooms of instrument engineers, neither instrument engineers nor UPTTI. But this time, director IIPR had agreed to give the guest rooms for our members, so our guests had stayed there. So no, this is how we are managing, sir. Good, sir. Excellent. Okay, thank you, sir. MK Srivastava ji, please start your discussion. Sir, this was a brief introduction of our institution, this AIVA, All India Institute of Valuers. So now, the main issue coming in this session is that we should go for valuation of this solvency, whether we should give the land rate based on circle rates or it should be the market value of the property. This is the main concern of today's topic. So members are requested to share their views. So first of all, I will like to call Naveen ji. You are visible. So what is your opinion that whether we should go for land rates based on circle rates or on the fair market value? Yes, Naveen ji. Hello, sir. I am audible. Yeah, okay. Sir, what I think in most of the cases, agricultural land comes in insolvency cases, what we have seen in our area. So in that case, we consider the circle rate only. Yes. But if the urban property comes within municipal limit, then we consider the market value of the property. Market value of the property. Yeah. But in case of agricultural land, then we go for circle rate. Yeah. That is the best choice. Yes, sir. Whatever is written on the circle rate for hectare rates. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In case of agricultural property, rural property. In case of agricultural property. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, Pramod ji, any other matter? Naveen ji? Yes, sir. Any other question, sir? Then what about the building? What about the building? Building. If the property comes in municipal limit residential building, then we go for market value, sir. Market value. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So this is irrespective of that on what kind of land the building has been constructed. Sir, if the property is within municipal limit, then it is usually a residential purpose. Okay. Within municipal limit, definitely it will be a residential land. Then only building has been constructed. A building was constructed. Sir, any? Pramod ji, what is your views? सर मेरे हिसाब से तो दोनों चीज वेरी कर रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में केवल सर्कल रेट लेंगे और जो म्युनिसिपल लिमिट्स के लैंड है उसमें मार्केट रेट लेंगे. आई थिंक वी शुड गो विद वन नॉर्म. Basically, what the department requires, first we should know about that. What actually they are requiring. Only then we can comment on this. We have not done any case for the solvency purpose. This was the reason, that's why we called this excise person to elaborate the things. But instead taking valuation at circle rate for agricultural land and for market rate for non-agricultural land, I don't think we should have one norm. Either we should take market rate or we should take circle rate for both the purpose.
Sir, regarding agriculture properties, Even agricultural properties, there may be market value, maybe more or maybe less. So how can we take no, no, as the land is not demarcated, all the other factors are there, then therefore for the safer side, we go for circulation. As a valuer, we cannot value agricultural property because we are restricted by the act. Yeah, that is not in our jurisdiction. Yes, that is not our jurisdiction. Yeah. So either we should refuse that agricultural land value There is or a solvency value. separate value for that, and then registered for that only. So we can't go for that valuation. Okay. अच्छा, मैं कुछ बताना चाहूँगा। मैं भी हाँ, बोलिए। परसों में गया था डीओ के पास, जो हम इनवाइट करने गए थे इसके लिए डिस्कशन करने के लिए। उनका कहना था, दास साहब देखो, जो वैल्यूशन आप देते हो वो चाहे डीएम रेट में दो, मार्केट रेट दो, हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हम आपको जो इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड है उनका हम वैल्यूशन मानते हैं। बाकी उनका ये चीज़ कहना था कि आप प्रॉपर्टी देखने जरूर जाओ, लेकिन समस्या हो रही मेरे ख्याल में सॉल्वेंसी केसेस में प्रॉपर्टी बिना इंस्पेक्शन करके ही रिपोर्ट दी जा रही है। ये भी बहुत सारे आ रही है व्हाट्सएप ग्रुप में भी कि आओ 500 रुपया लो, रिपोर्ट ले जाओ। ये चीजें थोड़ी सी गलत है। हाँ, तो ये चीजें को हमको सारे जो उनसे जो बात हुई थी, उनका कहना था अब ये उनके कान तक भी है, पहुंची है। क्योंकि हम करीब 15 मिनट उनके साथ बैठे थे। वो ये आलोक सिंह भी थे और उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, दोनों लोग थे। ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहते हैं मैं तो नहीं आ पाऊंगा और हम लोग कहाँ पढ़ा पाएंगे, तो हम उन्होंने इंस्पेक्टर को ड्यूटी दिया था कि तुम जाके हमारे तरफ बोल देना। तो उनका कहना था कि जो हम आपके वैल्यूएशन रिपोर्ट लेते हैं, वो नहीं कि हम आपका रिपोर्ट को पूरा विश्वास करते हैं। जो हम उनको दुकान अलर्ट करते हैं तो उसमें उनके बदले में उनका शेयर या उनका गोल्ड हम कंसीडर करते हैं। आपका रिपोर्ट तो एक प्रिलिमिनरी हम रख लेते हैं, उनका कितना उतना हैसियत कितना है। लेकिन हम जो अलर्ट करते हैं, मान लो हम दुकान अलर्ट कर दिया, उनको दारू दे दिया और उन्होंने को पैसा वापस नहीं किया, तो हम ये प्रॉपर्टी वैल्यू से क्या करें? कुछ करेंगे नहीं। तो इसलिए उनका शेयर और गोल्ड हम अपने कब्जे रखते हैं उतना वैल्यू की, और उसी को ही हम ये करते हैं। तो इसलिए आप जो भी वैल्यू दे, हमें चाहे डीएम रेट पे दो, मार्केट रेट दो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ऐसा कुछ नहीं है, गाइडलाइंस है। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी आप खुद ही इंस्पेक्शन करने जाओ और दूसरा वैल्यूएशन वही करे जो इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड। ये उनका कहना था। सर, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, प्रमोद सर ने भी अपना एक व्यू रखा कि डिफरेंस क्यों है उसमें। एक्चुअली वैल्यूएशन तो मार्केट रेट पे ही होता है सर, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं। और इंसॉल्वेंसी के लिए भी उनको मार्केट रेट का ही वैल्यूएशन चाहिए, उनको कोई सर्कुलेट का वैल्यूएशन नहीं चाहिए। मगर क्या है कि विद इन म्युनिसिपल लिमिट में मार्केटेबिलिटी है, बहुत सारे फैक्टर हैं सर, जिसके कारण हम ये ले लेते हैं। और एग्रीकल्चर में क्या है सर कि डिमार्केशन नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है और कई हेक्टेयर में होती है। साइज ऑफ अप्रोच रोड की प्रॉब्लम हो सकती है ना सर, अप्रोच रोड है, पता चला उसमें चक रोड से जा रही है। अच्छा, दूसरा क्या है सर, अगर वो तहसील से भी जाएंगे ना निकलवाने, तो वो भी सर्कुलेट लिख के ही देगा, उसका सर्कुलेट पे वैल्यू लगा के देगा। तो इसीलिए हम ये लोग, अच्छा अगर ये बाय चांस ये वैल्यूएशन बैंक के लिए आई होती फॉर एग्जांपल, तो स्ट्रिक्टली मना था। क्यों? क्योंकि हम पे वो लाइसेंस नहीं है। ये इतना वाला फैक्टर नहीं है। और ज्यादातर ये जो ठेके वेके लेते हैं, हमने देखा इनकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी बहुत आती है सर। हाँ, तो सेफ्टी साइड होना चाहिए, इसलिए सेफ्टी साइड की वजह से डीएम रेट। यस सर। और सर जहां तक बात सर दास सर आपने कही, वो तो बिल्कुल ही ठीक है। चाहे रिपोर्ट कोई सी भी बनती है सर, आजकल तो उस पे गूगल कोऑर्डिनेट्स, टाइम, डेट सब लिख के आता ही है सर। और वही जो है वैलिडिटी मानी जाती है रिपोर्ट की, जिसमें कि करंट टाइम एंड डेट भी हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हो। सर मैं ये कह रहा था कि इसमें कि जो हम लोग वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, हम लोग को गूगल का जो लाइट कैमरा है सर उससे हम लोग फोटो लेते हैं अपनी साइट पर। ये प्रूफ है कि हम इस दिन इस तारीख को इंस्पेक्शन करने गए थे और हमारी फोटो लगी अपनी। बिल्कुल सर, तो बिना किसी थर्ड पार्टी से तो कराते ही नहीं कहीं। हाँ बिल्कुल सर। यार काम थोड़ा करें बात अलग है। सर क्योंकि आपकी अपनी फोटो होनी चाहिए। अगर आप किसी बंदे को भेज नहीं रहे किसी मजबूरी में, जी तो उस बंदे की वो साइट पर फोटो होनी चाहिए गूगल लाइट कैमरे के साथ।
100% सर, 100% करेक्ट। फोटो पे रहे कि साहब ये इस तारीख को इतने बजे वहां गया था साइट पर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैंडेटरी होनी चाहिए और रिपोर्ट में बहुत से लोग नहीं दे रहे इस चीज को। कोई बात नहीं सर, वो तो क्या है, देखिए हर प्रोफेशन में हर तरीके से काम करने वाले लोग हैं सर। प्रॉब्लम वो नहीं, अभी मेरे पास एक केस आया था DRTC देहरादून में, सर उसमें बैंक ने जो वैल्यूएशन कराया उसमें और जो पार्टी ने लिख के दिया उसमें ऑलमोस्ट 60% का वैल्यूएशन है। पार्टी कह रही मेरी वैल्यूएशन 1,32,00,000 है, बैंक कह रहा 75 लाख है। तो कोर्ट ने फिर मेरे को अपॉइंट किया कि साहब आप निकाल के दीजिए क्या है। मैंने उन दोनों रिपोर्ट्स को देखा, और ना तो फोटो में किसी की साइट पर फोटो है, न किसी ने कोई ये दिया है कि साहब क्या बेसिस ले रहे हैं वैल्यूएशन का, वो मार्केट रेट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, किसी से बात करी है, किसी मतलब प्रॉपर्टी डीलर से बात करी है, गूगल से लिया है कोई वैल्यूएशन, कहीं कुछ नहीं, दोनों रिपोर्ट्स हैं। जी जी। मुझे अल्टीमेटली पे वो देना पड़ा सारी चीजें, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया मेरी रिपोर्ट। ये है असली फर्क। हम लोग बहुत सारी चीजें स्किप कर जाते हैं, जो सस्ती वाली वैल्यूएशन है ना, वो ये सब यही हो रहा है हमें। आपको किसी बंदे की साइट पे फोटो नहीं मिलेगी इसमें, जी जी। ना उसको मिलेगा कि सब गूगल से हमने क्या रेट किया, मार्केट रेट कहाँ से था, बस रेट क्या है, खत्म हो गई बात। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। जी सर। प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है कि आज की तारीख में हर आदमी को पैसा पैदा करना है। अभी मार्च का महीना आएगा, लोग 100 वैल्यूएशन बनाएंगे और 1,000 रुपए फीस लेंगे, और पोजीशन ये रहती कोई भी साइट पे नहीं जाता है फ्लैट कि उनको वैल्यूएशन जा रही जो फ्लैट ऑलरेडी बेच चुके हैं। पुरानी हमारे पास थियरी कॉपी पड़ी, मैंने उसको बढ़ा के दे दी, उन्होंने वैल्यूएशन बना दे दी। न किसी को कहीं जाना है, उसकी ओनरशिप वेरीफाई करनी है, न कहीं साइट की बाउंड्रीज देखनी है, सिर्फ पेपर हमारे पास आ गए और उसमें खाली कॉपी पेस्ट करना है, नाम उसका हटा के इनका नाम डाला गया और सारी बना के दे दी गई। अब ऐसी वैल्यूएशन आएंगी तो उसका ऑथेंटिसिटी क्या होगी? वो दिन दूर नहीं जब डिपार्टमेंट या डीएम मना कर रहे हैं कि वैल्यूअर से रिपोर्ट ही न ली जाए। कितनी फेक रिपोर्टें जा रही हैं। लोग तो ऐड दे रहे हैं पेपर में कि आधे घंटे के में रिपोर्ट ली जाएगी, उससे पेपर में रिपोर्ट लीजिए हमसे। वो तो मछली बाजार बन गया लोग। अब उसमें क्या करोगे आप? उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अब नहीं कर सकते, हम लोग क्या कर रहे हैं वो बता। वही कुछ नहीं, इतनी हालत खराब करते जा रहे हैं। नए लड़के जो आ रहे हैं काम करने के लिए, इन्होंने इतनी मार्केट खराब कर दी है आज की तारीख में कि काम करना मुश्किल हो रहा है। सर इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि जो कि इस तरीके के नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करे कि जब आप वैल्यूएशन करने के लिए जाएंगे तो वहां आपकी जियो टैग फोटोग्राफ भी होनी चाहिए, या वहां से डिपार्टमेंट ने अपना पूरा फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, बट कोई फॉलो नहीं करता ना, बैक से कर लेते हैं। सब कुछ है, उसके बाद डिपार्टमेंट ही नहीं चाहता कि रेगुलेशन से काम हो। कुछ चाहिए। मेरे पास एक फोन आया था, मैं कहीं गया हुआ था विजिट पर, कि तब शाम को रिपोर्ट चाहिए, क्या मैं नहीं दे सकता, आप 3 दिन से पहले मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको जिससे कराना हो करा दीजिए। मैं तो सिंपली रिक्वेस्ट करता हूँ, आई कांट गिव वैल्यूएशन विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स। मैंने मना कर दिया, मुझे 2 दिन चाहिए कम से कम। आज आप 2 के कागज पर, कल मैं जाऊंगा देखूंगा प्रॉपर्टी, तभी तो रिपोर्ट दूंगा। हमारे यहाँ हमसे भी कोई पूछता है, हम तो ये कहते हैं आज आप इनिशिएट करेंगे, कल विजिट होगी, परसों रिपोर्ट मिलेगी। इससे पहले नहीं हो पाएगा। हाँ भाई मिनिमम टाइम तो चाहिए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज तो बैंकर भी ये कहता है कि इसकी कितनी रिपोर्ट देंगे आप? या पहले वैल्यू बता दीजिए विजिट के बाद। और किसी कोई सजेशन? एक्चुअली इसमें 2 पॉइंट है, अगर सजेशन दे उसके बाद हम लोग आश्वासन तरफ से क्या कर सकते हैं, ये भी सुझाव हो। जैसे मान लो डीएम के अंडर से काम होती है, यार जितने डीएम है या कमिश्नर है उनको चिट्ठी लिखी जाए कि ऐसे गड़बड़ हो रहा है, क्या नहीं, तो आश्वासन क्या कर सकता है, ये भी सुझाव है। सर इसमें मेरा सजेशन ये है कि 2 मीटिंग होती है नॉर्मली गवर्नमेंट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या तो बैंकर्स लेवल कमेटी मीटिंग होती है जो शायद बाई मंथली या 3 महीने में एक बार होती है, और दूसरी होती है उद्योग बंधु की मीटिंग जो वो हमको ऐसा कर रहा है कि फला तो इतनी दे रहा, आप इतनी क्यों दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए इतनी। ये तो 5 मैटर को उठाया था कि इतनी जल्दी रिपोर्ट ऐसे नहीं दे पाएंगे सर।
तो हम किसी को मना करना पड़ेगा ना, कल को कुछ भी बात होगी आश्वासन किनको जो साइन कर रहा है कि फंसेगा हाँ, अल्टीमेटली फंसना उसी को ही है ना, साइन को गया उसको वो फंस रहा है ना, जिसने बनाई वो फंस रहा है. द पर्सन हु साइन द रिपोर्ट वो रिस्पांसिबल ही सोली रिस्पांसिबल. यस. आनंद सिंह भैया जुड़े. आनंद सिंह, आनंद जी सर. बताओ क्या कहना तुम्हारा. हाँ, देखिए, हमारा ये कहना है कि हमने एक वो भी डाला अभी कि मतलब जो दिल्ली है वहाँ पे जो इस तरह का जो भी सर्टिफिकेट बनता है सॉल्वेंसी से रिलेटेड, तो उसमें वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. तो उसमें एक तो ये है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, और प्लस दूसरी बात होती है कि उसकी कोई लायबिलिटी तो नहीं चल रही है, उसको भी वो इंडोर्स करते हैं. लायबिलिटी हटाने के बाद ही उसकी हैसियत पता चलेगी कि क्या है. मान लीजिए उस जमीन पे जिसपे सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उस पे जितनी हैसियत है उसका मतलब 50% 60% ऑलरेडी कर्जा चल रहा है, तो उसकी हैसियत बनेगी कहाँ पे. एक तो ये बात है. अच्छा, दूसरा है जो हम लोगों का एक पोर्टल चालू हुआ है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं. तो उसमें भी यही प्रोसीजर दिया है. उसमें जो फॉर्म फिल होता है तो उसमें वैल्यूअर की रिपोर्ट प्लस उनकी जो बैंक स्टेटमेंट की क्या लायबिलिटी है वो भी उसमें दर्ज होती है. बैंक जो भी कहता है ये सब कुछ उसमें लिखना होता है. अच्छा, दूसरा जो एक पर्टिनेंट क्वेश्चन आ रहा है कि हम इसमें कौन सा रेट लें लैंड का, या मार्केट रेट हमें लेना चाहिए या हमें उसका सर्किल रेट लेना है, डीएम जो बताया हुआ है. तो इसमें जो मेरा ये ऐसा मानना है कि देखिए, अगर इस हैसियत प्रमाण पत्र सॉल्वेंसी को हम लोग जारी ना कर, मतलब हम लोग इसकी रिपोर्ट ना बनाते, तो इसकी रिपोर्ट बनाता कौन. इसकी रिपोर्ट बनती लेखपाल के एंड पे, तो लेखपाल तो उसका मार्केट रेट लिखेगा नहीं कभी भी. वो तो हमेशा इसका जो डीएम का जो टेबल होगा उसी से रेट लिखेगा लैंड का. तो हम लोगों के लिए सेफर साइड यही है कि हम लोग उसमें वही फॉलो करें जो लेखपाल को फॉलो करना था. यानी कि जो डीएम ने सर्किल रेट लिख रखा है बस वही लिखना चाहिए. और प्लस जो ये लायबिलिटी पार्ट है, अगर कोई हमारी वो बताता है, या उसमें मतलब जो दिल्ली वाला है उसमें तो एक एफिडेविट भी लिखा है कि उसमें लिखा है कि हमारा कोई लायबिलिटी नहीं है जमीन पे, तो ऐसा एक हमें उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो हमें दे. और मतलब उसको उन्होंने एनईसी ही बोला है, मतलब कोई इनकम्बरेंस नहीं है उसको. तभी उस जमीन से रिलेटेड वो सॉल्वेंसी को मतलब या उसके लिए रिपोर्ट जो हम लोग बना रहे हैं वो जस्टिफाई कर पाएंगे. ठीक है, अभी वो चूंकि नया नया मामला है और वो शराब के लिए होता है पर्टिकुलरली, लेकिन ये जो सॉल्वेंसी का सिस्टम है ये देर सबेर जब जीएडी अप्रूव हो जाएगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो सारे विभागों में लगाते हैं तब ये सीरियस मैटर होने लगेगा. क्योंकि जैसे कास गंगा के केस में क्या हुआ था कि यूपी सीडा ने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे दिया था जिनकी कुछ भी सॉल्वेंसी थी ही नहीं, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिए वहां पे. तो बाद में जब जांच हुई तो कुछ निकला नहीं, तो उनका सब टेंडर रद्द हुआ, सब कुछ रद्द किया गया और उनको पनिशमेंट भी, मुकदमा कायम हो गया. तो हम लोग उसमें पार्टी ना बन जाए. कभी ऐसा कुछ हो जाए, कोई जांच बैठ जाए या कुछ हो जाए, तो हम लोग जो आग से खेलने जैसा काम कर रहे हैं. क्योंकि हम लोग एसोसिएशन है तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी वैल्यूअर है वो सेफ रहे और ऐसा काम ना करे कोई भी. क्योंकि इस विषय में कोई गाइडलाइन तो शासन ने दी नहीं है आपको कैसे क्या वैल्यूएशन करनी है नहीं करनी है. लेकिन सेफर साइड क्या है, सेफर साइड यही है कि जो जिस तरीके से एक लेखपाल वैल्यू बनाता हम लोग उसी तरह पे उसको बनाए. बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें फंसा ना दे कहीं पे कि नहीं लाओ कुछ भी लिख देते हैं, तो ऐसा दो. लेकिन आनंद, हमारा सबमिशन ये था कि जो इन्फ्लेटेड वैल्यूज लोग देते हैं उनसे अपने को बचना है. हमको ये देखना है कि फेयर मार्केट है क्या मार्केट में. हम वो वैल्यू के उसमें सेफर सही है हमारे पास. नहीं वो जो काम कर रहा है अगर वो भी हम ही करें, कल को वकील देनी शुरू कर देगा. तो भाई सर्किल रेट में लैंड के रेट भी लिखे हुए हैं,
कंस्ट्रक्शन के रेट भी दिए हुए हैं, दोनों बना के कुछ वकील दे देगा उसमें, तो आपको उसमें अंतर क्या रहेगा फिर तो? नहीं, उसमें जब जब शासना आदेश ऐसा कोई आ जाएगा कि वकील बना सकता है तो बिल्कुल बनाएगा आप। हाँ नहीं वही ऐसा लेकिन ना शासना आदेश देखिए वकील के फेवर में नहीं आया है। शासना आनंद आदेश जो है वो हमारे फेवर में आया कि नहीं वैल्यूअर मेरा एक चीज कहना है इसकी तो आनंद आपको अपनी टेक्निकल नो-हाउ देनी ना उसमें। आनंद नहीं आनंद नहीं, टेक्निकल से कुछ लेना देना नहीं है, वो भाई केवल वैल्यू कैसे सर्च करोगे आप? देखिए वो आप वैल्यू कैसे सर्च करोगे? देखिए वो आपको सर्किल रेट वाला ही लैंड रेट लेना चाहिए मेरी ओपिनियन में। वही मुझे क्यों भाई बता तो रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो चीज अगर लेखपाल के एंड पे बनती तो कभी भी मार्केट रेट नहीं लिखता वो। नहीं लेखपाल इसीलिए लेखपाल नहीं बनाता ना। नहीं जब लेखपाल से आपको क्यों देखिए लेखपाल से हटा के हमें क्यों दिया गया, इसकी वजह ये नहीं है कि लेखपाल सही वैल्यूएशन नहीं बना रहा था, इसकी वजह ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेखपाल के बाद 50,000 काम और भी है, तो उसको नहीं, इस ऐसा काम नहीं। से फ्री करने के लिए सरकार ने ये सोचा कि ये भारी मात्रा में लोग टेंडर करेंगे तो इनकी जल्दी जल्दी बन जाए, जिससे कि हम अपनी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ले। अगर ये चीज फिर से वही फंसा दी जाती तो ये टेंडर ही नहीं डाल पाएंगे लोग, ये बात है। लैंड रेट चलो ठीक है, लेखपाल ने देख लिया सबके रेट से। जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, कितना पुराना है, कितना डेप्रिसिएशन लेना, उसको लेखपाल को क्या पता उसके बारे में? नहीं सब पता है, ये हम लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं नहीं पता पता है, है उसको पता है, वो बनाता है इस चीज भाई, वो नॉन टेक्निकल आदमी भैया वो सब ठीक है। लेकिन आप रिपोर्ट देखिए जो हाँ। जो सॉल्वेंसी की जो लेखपाल के द्वारा बनी हुई रिपोर्ट को पढ़ी है तो उसमें कोई चीज कभी नहीं छोड़ी जाती। ये हम लोग सोच रहे हैं कि उसे कुछ नहीं पता। भाई आप उसकी टेक्निकल training- आदमी हो, आपको टेक्निकल नो हाउ देना है उसमें, उसकी ट्रेनिंग लेखपाल होती के साथ है, करना आपको। नहीं लेखपाल की वैल्यूएशन बनाने की ट्रेनिंग होती है, ऑलरेडी है, वो रेवेन्यू की भी बना सकता है, उसको ट्रेनिंग हमको भाई तो उसको भी वैल्यूएशन की ट्रेनिंग उसको भी दे दी जाए फिर वो। नहीं वो दी सर भी जाती है, सर सॉल्वेंसी के लिए जो आप क्या कहते हैं वो है जिसका 34 AB में रजिस्ट्रेशन है वो ही बना जी। सकता है, लेखपाल भी नहीं बना सकता सर आप। नहीं वही लेखपाल या रजिस्टर्ड वैल्यूअर दो लोगों के लिए है, आप जियो पर लीजिए, ऐसा नहीं है। सर सर इसकी- पढ़ा है, अभी जब पीछे यूपी में ठेके हुए थे उसमें एक रिपोर्ट भी किसी लेखपाल की नहीं लगी है, सारी रिपोर्ट जो लगी है वो 34 AB वैल्यूअर की ही हाँ लगी है। वो इसलिए लगी है ना क्योंकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लोगों ने ज्यादातर वैल्यूअर से बनवाई, क्योंकि लेखपाल में अगर जाएंगे तो 21 दिन का समय लगता है, उनका टाइम फ्रेम 21 डेज का है। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं, अगर मान लो हम भी डीएम का रेट मान लें तो कल को अथॉरिटी कहेगा जो लेखपाल भी डीएम रेट करते हैं तो वैल्यूर भी कर रहे हैं, तो वैल्यूर से में क्या काम है? सर कोई काम डीएम नहीं। का रेट नहीं, मान नहीं सकते। मैं अभी आपको एक रिसेंट केस देखिए बताता हूँ दास साहब, दिल्ली का। इसमें ये आपको जो दिया गया है ये केवल वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दिया गया, छेड़छाड़ करने के लिए नहीं, अपना अकल लगा करके अलग रेट बनाते हैं, उसको साबित नहीं कर पाएगा कोई भी आदमी, कोई वैल्यूअर अपने मनमर्जी का जो रेट देगा, अगर शासन कहेगा इसको साबित करो तो किसी में वो नहीं है कि कोई साबित करे। नहीं सर ऐसा नहीं है, दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली अभी क्या है, जैसे दिल्ली के साउथ दिल्ली में फार्म हाउसेस बिके हैं, वो 150-200 करोड़ रुपए के बिके हैं। अब क्या है, लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई है 40 करोड़ 45 करोड़ रुपए की, तो अब शासन जो है उस चीज की मार्केटेबिलिटी निकलवा रहा है और उसमें वैल्यूअर की हेल्प ले रहा है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, ये जानने के लिए कि उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है और कितना स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई। वो सर अलग केस है, यहाँ पे हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो स्टैम्प ड्यूटी की चोरी नहीं पकड़ रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया कि आपको करना क्या है, उन्होंने कहा केवल आप हमें पर्टिकुलर जॉब के लिए बना दीजिए। तो सॉल्वेंसी में तो सर उसने मार्केट वैल्यू पूछी है ना, सर्किल रेट वैल्यू थोड़ी पूछी है, और सॉल्वेंसी की जिस मतलब कि वही तो आप वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम लोग ना बना रहे होते तो इसको लेखपाल ही बनाता, वो कोई मार्केट रेट नहीं लिखता उसमें। हाँ लेखपाल सर देखिए, लेखपाल तो आपकी बात ठीक है, लेखपाल तो इन जनरल भी मार्केट रेट कभी लिखता ही नहीं है, वो तो गवर्नमेंट गाइडलाइन जो रेट है वो ही लिख के रिपोर्ट देता है। वही हम लोग लिखे जब तक कि कोई बहुत बड़ा कोई जाल ना फंस जाए इसके अंदर। नहीं ये देखिए सर, नहीं सर देखिए, नहीं मैं सर देखिए एक बात सुनिए, ऐसा है जब हम गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर है
और हम मार्केट को एसेस करते हैं, तो इतनी तो हमें नॉलेज है ना कि क्या कहते हैं वहां पे मार्केटेबिलिटी क्या है। मैं कह रहा हूँ सर्किल रेट अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए है और अगर हमें पता है कि वहां पे मार्केट रेट लाख रुपए है, तो हम उसका 50,000 का 20% 10% बढ़ा के दे सकते हैं। इसमें क्या बात है, जस्टिफिकेशन किया जा सकता है उसको। हमें ये नहीं करना चाहिए कि 50,000 रुपए है तो उसको 1.5 लाख रुपए बना दें। बट हाँ, मार्केटेबिलिटी अगर हमें लगता है कि 1 लाख रुपए तक की मार्केटेबिलिटी है, तो यस वी कैन डू क्या कहते हैं 10 to 10% 20% एप्रिसिएशन इन द गवर्नमेंट गाइडलाइन रेट टू असेस द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ सर बताइए। हाँ श्योर। सर ऐसा है कि जो अब थोड़ा सा पुराने एक्सपीरियंस में जाता हूँ, जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू दे रहे हैं, इसकी कोई हम लोग बहुत ऑथेंटिक नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज हम बेचने जाएंगे तो वो नॉर्मली जो है, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेचने जा रहा है, तो उसको जो मार्केट प्राइस हम बता रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां भी लोग ये कोशिश करते हैं कि सब हमें सस्ते सस्ता मिले। आप जो वैल्यूएशन कर रहे हो उसकी आप सेल लीड देखोगे उठा करके, अगर कोई रिसेंट भी हुई होगी तो नॉर्मली सर्किल रेट के आसपास है। कौन करा रहा मार्केट रेट में सेल लीड आपकी? तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आप बेचने जाएंगे गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको क्या उसी रेट पे बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। जो सॉल्वेंसी वाला इशू आ रहा है उसमें मुझे ये लग रहा है कि हमें बेसिकली असेट एंड लायबिलिटीज की बात करनी चाहिए। इसमें असेट में वैल्यूएशन कर रहे हैं, लायबिलिटीज अगर आप चेक कर सकते हो तो क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को पकड़े और वहां से उसकी क्रेडिट रेटिंग निकलवाएं, तो उसमें उसको पता लग जाएगी कि आपके पास किसकी जगह से कितने लोन्स चल रहे हैं या उसकी क्या स्थिति चल रही है। अगर उसको हम यूज करेंगे तो हो सकता है हम बेटर उसमें सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बना पाएंगे। सर देखिए प्रमोद सर, आज की डेट में जो मार्केट में बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स आ रहे हैं या एग्रीमेंट टू सेल आ रहे हैं, वो भी सर हायर वैल्यू के आ रहे हैं। आप देखेंगे मोस्टली मैं तो दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, बहुत हाई रेट के क्या कहते हैं ये सारे एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, और उसी पे लोग रजिस्ट्री भी करा रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि अब लोग जो है वो क्या कहते हैं पुराना वो सर्किल रेट पे रजिस्ट्री करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो करंट मार्केट वैल्यू है उस पे भी रजिस्ट्री करा रहे हैं। नहीं, अगर आपको उसके आसपास मिल रहा है वैल्यूएशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके आसपास की आप मान ली 4 साल 5 साल पुरानी रजिस्ट्री है, तो क्या करेंगे? नहीं, 4-5 साल पुरानी रजिस्ट्री सर, आपकी बात ठीक है, पहले 4-5 साल पहले सिनेरियो अलग था। बट आज की डेट में क्या है सर, अगर मार्केटेबिलिटी किसी प्रॉपर्टी की फ्लैट की अगर 2 करोड़ रुपए है, तो आप विश्वास मानिए कि क्या कहते हैं 190, 180, 2 करोड़ तक के ही एग्रीमेंट आ रहे हैं। और बस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो बैंकर, जो लैंडर है, जो फाइनेंस कर रहा है, वो वैल्यूअर से ये कह रहा है कि आप इसकी वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 2 करोड़ से ऊपर ही रखें। सर यहाँ पे हम लोग बैंक का टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, केवल एक स्पेसिफिक रहेंगे। नहीं सर, मैंने तो आपको अभी प्रमोद सर ने जो कहा उसका एग्जांपल दिया है कि आज की डेट में वो चीजें हम लोगों को सबको पता ही है। अभी हम लोग बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि जो सॉल्वेंसी का मैटर है, इसकी गाइडलाइन मतलब क्या होनी चाहिए, ताकि एसोसिएशन भी इस चीज को अपने जो भी वैल्यूएबल मेंबर्स हैं उनको बताएं कि देखिए ऐसे चलिए और ऐसा कुछ मत करिए जिससे कि कोई भी हॉट वाटर में आ जाए, कल के दिन क्या पता क्या पंगा हो जाए। अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन कब हो भी तो सकता है कभी। सर लायबिलिटीज तो पता करनी पड़ेगी ना, कैसे वो करेंगे हम लोग? देखिए वो तो ऐसा होता है ना, खतौनी में तो नहीं, वो जो खेती वाली लैंड होती है उस पे अगर कोई चार्ज लगा है तो वो तो आपको खतौनी में मिल जाता है, वो तो मिल जाता है, लेकिन बाकी का नहीं। और यही वो जो गाइडलाइन थोड़ी थोड़ी हमें मिली है नेट पे, उसमें यही लिखा है कि ये इसको लायबिलिटी वाले पार्ट को आप स्किप करके मत सोचिए किसी। अच्छा, चूंकि हम लोग सीधे वो वही रिपोर्ट उनकी एज ए सॉल्वेंसी ट्रीट हो रही है, अगर वो ट्रीट ना हो, मान लीजिए वो सॉल्वेंसी का एक पार्ट हो हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट, तो वो एक अलग सीन बनेगा। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट उसी को सीधे सॉल्वेंसी में ट्रीट कर ले रही है ना, तो रिस्क ज्यादा बड़ा है, इसको हमें समझना। उसमें ऐसा करना, रिमार्क में नीचे डालिए
liability to be assessed at the organization end. नहीं जो नहीं डिपार्टमेंट जिसको हम नहीं दे रहे हैं, ये उसका काम है कि एसेस करे वो, नहीं, कोई लाइबिलिटी हम- है कि नहीं उसके ऊपर, देखिए या उससे अंडरटेकिंग दे वो। हम लोगों का ये है कि वो जो अंडरटेकिंग है ना, वो जो जिसके पास जमीन, जिसकी जमीन है उसी से ले लेना, एक फॉर्मेट में वो लिख के दे कोई भी नहीं है, और उसको रिपोर्ट में एनेक्स कर दे। मतलब हम अपनी तरफ से कोई भी चीज न छोड़े कि कल के दिन हम फंस जाए, हमारा ये उद्देश्य है यहाँ पे। तो वो बंदा अगर उसका कर्जा होगा, देखिए कृषि वाले का तो सीधे दिख जाएगा आपको, और इन केस अगर उसका अगर मांग सकते हैं तो भाई तो उससे मांगे कि भाई तो अपना सिविल ले आओ लेटेस्ट, या एनईसी दिखाओ, कि ताकि हमें ये तो पता चले कितना कर्जा तो वहां पर चल रहा है। सिविल वो भी नहीं करने को दे देगा, कोई क्यों नहीं देगा? को दे देगा। नहीं, उसको रिपोर्ट बनानी है तो देगा, बनवानी है तो देगा। नहीं जरूरी है कि हम उसकी रिपोर्ट बनाए, जिसके वो कुछ तो ऐसे भी सुनने में आया कि उसके पास कोई भी मतलब जमीन का कागज ही नहीं है, लोग बना के दे रहे हैं, तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। हम तो सेफ्टी गाइडलाइन इशू करना चाहते हैं ना, कि वेलवर को ये चीज लेकर ही बनाना चाहिए। अब वेलवर नहीं मानना चाहता तो उसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। वेलवर सारे जितने भी चेक पॉइंट है उसको स्किप करने के लिए तैयार है। अब हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग तो ये बता रहे हैं ना, ये देखिए ले लीजिए आप कि भाई क्या क्या लाइबिलिटी आपके ऊपर है, वो से हाँ तो उसका स्टैम्प पेपर के ऊपर, 10 स्टैम्प पेपर ऊपर, हाँ वो दे हमें भाई लिख करके। आप जाके उसकी सिविल चेक करो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं वो अपनी दे खुद सिविल ला करके, हम थोड़ा चेक करने जाएंगे। वो तो लेटेस्ट सिविल देगा कल की। नहीं तो उसका दूसरा वे आउट ये है कि उससे आप एक अंडरटेकिंग ले लीजिए आप हाँ अंडरटेकिंग ले कि ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर है। हाँ बिल्कुल। भाई वो तो लाइबिलिटी उसकी हो गई ना, अंडरटेकिंग अगर दे रहा है तो हाँ आप लाइबिलिटी, उसको सेपरेट कर दीजिए आप। हाँ उतना लेस करना। दोनों से ले लीजिए ना, हाँ अंडरटेकिंग भी ले लीजिए, सिविल भी ले लीजिए, हाँ उसी, और रिपोर्ट का वो पार्ट बना दीजिए आप। बस। जो देखिए हम लोगों को अपनी सेफ्टी देखनी, इसीलिए इस टॉपिक को रखा गया, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी ये सब होने लगता है अचानक से, तो हमें पता तो होना चाहिए क्या करना। तो वैल्यूएशन के साथ से लायबिलिटी भी देखनी पड़ेगी वैल्यूअर को। जो सर जब आप सॉल्वेंसी बना रहे हैं, सॉल्वेंसी बना रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी वैल्यूएशन वही रेट है, हमें को फेयर मार्केट लेनी है, सर्किट रेट लेना है। हाँ वो तो वैल्यूएशन हो गए, लेकिन आप इशू तो सॉल्वेंसी कर रहे हो ना, आप तो वैल्यूएशन फॉर सॉल्वेंसी लिख रहे हो, तब उसमें तो देखना ही पड़ेगा ना। जब भाई लोग लेके दे रहे आइए 10 मिनट, सॉल्वेंसी है, उसमें हम फेयर मार्केट पे जाना है या सर्किट रेट पे जाना है? कोशिश तो देखिए सबको करनी चाहिए कि आप सर्किल डेट पर ही जाइए, मेरी एडवाइस यही है। बाकी जब वेलवर मन मर्जी करने में हम आता है तो कुछ कर नहीं सकते। हम मन मर्जी की बात नहीं है। देखिए एसोसिएशन को हम अपने एसोसिएशन की तरफ से यही गाइडलाइन सबको देना चाहेंगे कि आप सर्किल डेट ही ऑप्ट करिए बस। नहीं ये गाइडलाइन तो मेरे ख्याल आसुंतर ऑफिशियल देना संभव नहीं है, मतलब ना वो नहीं संभव वो है। तो लेकिन आपका व्यू है भाई वो। हाँ, लेकिन ये जरूर लिख सकते हैं कि अपना सेफ्टी देखते हुए जो मार्केट ले उसका विथ प्रूफ, मतलब विथ सफिशिएंट प्रूफ। हाँ तो लेकिन प्रूफ कोई दे नहीं पाएगा, आप चाहे जितना बोल दीजिए, प्रूफ आपका यही काम करेगा। अगर नहीं दे पाएगा तो सर्कल लेगा और क्या। हाँ लेकिन हम लोग मतलब ये तो कहेंगे ना कि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इस केस में देखिए, बाकी आप बैंकों के लिए क्या करते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस केस में डीएम सर्किल डेट को ही ऑप्ट करिए। मतलब ये हम रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है वेलवर एसोसिएशन की। अच्छा एक चीज हमने भूल गए अच्छा बताना सर, भैया। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ सर, आनंद सर, मान लीजिए आप बैंक के लिए वैल्यूएशन करते हैं और बैंक के लिए वैल्यूएशन कोई भी करता है और जो भी रेट लगाता है, कल को किसी केस में कोई डिस्प्यूट होता है सर और लीगल बैटल होता है, तो हम कैसे प्रूव करते हैं रेट सर फिर कि हमने सही लगाया था? देखिए उसमें आप लोग और भी तमाम सारी चीजें करते हो, वो रिपोर्ट जो होती है उसमें आपसे कुछ एविडेंसेस भी लिए जाते हैं। यहाँ आप सॉल्वेंसी केस में ये सब तो कितनी तो लंबी माथा पच्ची कोई कर नहीं रहा, इसमें तो एविडेंस लेते हो उसमें कौन सा एविडेंस लेते हो आप? उसमें ऐसा कोई अभी तक एविडेंस मांगा गया है क्या किसी से? सर वही मैं पूछ रहा हूँ ना, उसमें आप कौन सा एविडेंस लेते हो जो यहाँ नहीं ले रहे हो आप?
दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ तो कोई कुछ ले ही नहीं रहा, यहाँ तो एक ही बंदे में लिख के दिए दे रहा है, तो उसमें कुछ नहीं ले रहा है सर कोई। सर वो बात नहीं, बात ये है सर कि आप जैसे हम आप क्या सर, मैं भी आप भी सभी एक ही फील्ड में हैं। हम जब बैंक के लिए रेट लेते हैं तो हम भी तो ये सोच के लेते हैं कि कल को किसी ना किसी को तो हमको जस्टिफाई करना पड़ सकता है तो ना उसमें सर? जो देखिए उसमें जो बैंक की गाइडलाइन है वो फॉलो करते हैं। क्या गाइडलाइन है? वो है कि आप 99 एकड़ का सर्च कर लीजिए, दो कंजिक्यूटिव जो उस एरिया की डील हुई हो उसको देख लीजिए, वो गाइडलाइन को वहां फॉलो करते हैं। यहाँ की गाइडलाइन को थोड़े ना है, यहाँ पे तो ये जो लेखपाल कर रहा है उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना है। अरे भाई 99 एकड़ और मैजिक ब्रिक फील्ड को कौन अडॉप्ट करता है उसको? स्टेट देखिए बैंक ने कहा अपनी नियमावली में उसको लिया है, इसलिए हम वो मानेंगे। अगर बैंक उसको हटा देगा हम नहीं लेंगे। नहीं वो तो खाली कागज की पेट भर रहा है वो, और नहीं कुछ नहीं कर रहा वो कुछ भी भर रहा है, उसने ही बोला कि ये चेक करो, हमने चेक किया। ठीक है, नहीं तो 99acre.com से और आप अपनी फेयर मार्केट से क्या कोई रिलेशन रहता है? क्यों नहीं रहता है? आप क्या रिलेशन बताओ मुझे? उसके बीच में ही तो जाते हो। आप 100 रुपए की चीज दे रहे हो, वो 300 रुपए दिखाता है 99 एकड़, तो कहीं जस्टिफाई करते हो उसे आप? वो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो लेते ही हो, ऐसा बिल्कुल ब्लाइंडली आप उसको हटा भी नहीं देते। नहीं उसके नीचे हमारा अगर है। वो 300 दिखाता तो आप उससे नीचे ही रहते हो ना, उसके ऊपर तो जाते नहीं। हाँ नहीं तो यहाँ भी तो आपको जो मार्केट में मिल रहा, आप कंजर्वेटिव हो लो थोड़ा सा और भाई, जो आप फेयर मार्केट ना देख के आप रेवेन्यू को ले लो उसे, आप 100 केजी ले लो आप। देखिए वो ये जो सॉल्वेंसी की गाइडलाइन, अगर आप दिल्ली वाला चैप्टर निकाल के जो भी भेजा उसको डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो आप ये डीएम भी निकालेगा रेट, उसका भी 75% ही ट्रीट किया जाएगा। डीएम वाले रेट को 75 ट्रीट होना है, ना कि मार्केट रेट का 75% ट्रीट होगा। अब उसको पढ़ोगे तो कहाँ लिखी चीजें, ये कहाँ लिखी चीजें बताओ ना। ये लिखी तो भेजा तो मैंने कागज, उसकी पूरी वेबसाइट देखिए कुछ नहीं, उसमें कहाँ लिखा है उसमें कि 75% लेना है, 90% लेना है? उसकी पूरी वेबसाइट नहीं देखी ना हमने तो लिंक भेजा, हमने देखा ही नहीं। उसमें दिया 75% लेना है जो डीएम से बन के आ रहा है। नहीं वो तो हमें नहीं लेना है, वो तो डिपार्टमेंट को देखना है। 75% लेना है, 50% लेना है उसको। हमारा जो मतलब सॉल्वेंसी फिगर जाएगी वो क्या जाएगी, जो मार्केट वैल्यू आप निकालेंगे उसका 75 लिख के देंगे कि दिस शुड बी ऑप्ट फॉर सॉल्वेंसी पर्पस, ना कि सीधे वो बुरा भाग हो गया, ऐसा नहीं करना है। सर वो हम थोड़ा लिख के देंगे, वो तो डिपार्टमेंट कंसिडर करेगा, उसे क्या करना है। भाई हमें देना सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू। वो तो अभी तो आपकी सीधे फिगर वो उठा रहा है ना, वहां पे नीचे आपको एक लाइन लिखनी है कि कितने आप अगर गवर्नमेंट की जो सॉल्वेंसी वाली जो यूपी गवर्नमेंट की जो बनी हुई रिपोर्ट होती है, उसको भी अगर उस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऊपर वो सारे एसेट जोड़ने के बाद लिखता है कि जितनी फिगर नहीं लेता है वो उससे कम करके 75% ही लिखता है कि दिस फिगर शुड बी ऑप्ट फॉर द सॉल्वेंसी पर्पस। उसको आप पढ़िए तो। सर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट हो तो एआईबी के ग्रुप में एक बार प्लीज शेयर करिएगा। हाँ कर दे वो जिससे जो यूपी गवर्नमेंट इशू करती है उसको आप पढ़ के देखिए वो क्या करती है। नहीं अगर ऐसी कोई रिपोर्ट हो जो आपके संज्ञान में आई हो, आई है, बहुत सारी आई है पिछले साल, तो उसको डालो थोड़ा सा, देखें हम लोग थोड़ा ज्ञान लें हम लोग भी थोड़ा उससे। अभी रिसेंट तुरंत अवेलेबल नहीं है, मैं ढूंढ के डाल दूंगा। हाँ उसको ढूंढ के डाल, थोड़ा सा ज्ञान हम लोग को बढ़े ना कम से कम, सारा ज्ञान रखते अपने पास, कुछ भी ना हम लोग को बिना उसमें। वो पूरा का पूरा आपको फिगर नहीं लेना होता। वही कह रहे हैं, अगर ऐसी चीजें कहीं हैं तो थोड़ा शेयर करो ना, कुछ सीखे हम लोग उससे। ठीक है तो हो गया। वहां भी देखिए वही कॉन्सेप्ट है कि अल्टीमेटली आपका डिस्ट्रेस सेल कितनी है, तो इसीलिए वो 100 के 75 ले रहा है। इसीलिए तो ऐसा है कि इस किताब उसको जो भी है वो आ जाए, कुछ सर्कुलर पढ़ ले, तब फिर इस पर डिस्कशन करें, तब तो पढ़ा है। आज तुम लोग ब्लैंक बैठे, बिल्कुल कुछ पता नहीं सी। तो एक्चुअली में पिछला 3 साल से ये सब चल रहा था लगातार, तो इसलिए सोचा गया कि ये एक रिलेवेंट है, क्योंकि अभी आनंद मेरे ख्याल में जो तुम बता रहे हो ना डॉक्यूमेंट जो है,
इसको मेल कर दो, हम सभी मेंबर को मेल कर देंगे। अगले बार अगर यही टॉपिक रखी जाएगी, सब लोग उसको स्टडी कर लें और फिर आए डिसीजन हाँ, करेंगे, तब फिर बैठे हम लोग। तब बैठे। हाँ ठीक है तो ये तब भाई, तो ये रिपोर्टें देखिए, पार्टियां आप लोगों के पास भी आई होंगी जो जिन्होंने अपनी पिछले साल की सॉल्वेंसी दिखाई होगी कि देखो यूपी गवर्नमेंट ने मैं ये बना के दे रखी, तो उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें नीचे ये चीज लिखी हुई है। सर हम लोग यहाँ नियम कानून पढ़ लें फिर बात करें। हाँ तो ठीक है, फिर आनंद एक काम करो, जो डॉक्यूमेंट डिटेल है वो हम मेल कर दो, हम सभी मेंबर को। ये कितने लोगों ने ध्यान दिया कि जो क्लाइंट लेके आया उसमें पूरी चीज क्या लिखी हुई थी, ये गलत थी। तो ठीक है, फिर आप जो डिटेल इसको भेज दो, हम हाँ सभी मेंबर को, आप कल परसों तो भेज दो, हम भेज दें, फिर अगले बार का तैयारी। फिर क्या यही टॉपिक पे रखी जाए, क्यों हम मनोज? सेम टॉपिक दास जी, सेम टॉपिक रखो नेक्स्ट टाइम भी, और उस पर डिस्कस करें एक बार। नहीं, फिर उसमें डिस्कशन दो तरीके होनी है, एक तो लैंड भी मिले, हम डीएम रेट ले, मार्केट रेट ले। दूसरा जो है, हम जो वैल्यूएशन काम कर रहे हैं, जो थोक के भाव मार्केट कर रहे हैं, हमें शासन में या कंसर्न अथॉरिटी किनको रिप्रेजेंट करना, खाली डिसीजन करने से कोई फायदा नहीं होगी। हम किसको रिप्रेजेंट करें, जो हमारा एक इसमें ये है कि जो एसडीएम फाइनेंस है या एडीएम वित्त है, नहीं, हम वहां से भी कोई आदमी होना चाहिए जो ये हम लोगों को थोड़ा क्लियर करेगा कि लेखपाल का प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से चीजों को ऑप्ट करता है। अगर हम लोग शासन में इस तरह की कोई चीज देते हैं तो वो कितनी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, जो हम लोग तो सब बना ही रहे हैं। तो एडीएम फाइनेंस को बुला लें अगले बार जी हाँ, तो ठीक उनका है, होना जरूरी है, वो उसको गाइड कर पाएंगे प्रॉपर, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी मैटर है सब फाइनेंस से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो उनका होना जरूरी है, वो सही इस पे अपनी पूरी बात बता पाएंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कहाँ गलती है, ये होना चाहिए कि नहीं होना। सर हम लोग रिपोर्ट देख लें, आत्ममंथन करें, अगली बार डिस्कस करें सर इसको। ठीक सर। जो भी सॉल्वेंसी की रिपोर्ट्स हैं, जिसके पास भी होंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड वो देख सकते हैं। सर डाटा ढूंढने के साथ कहाँ का क्या क्या हो रहा है तब देखते हैं। हाँ हो ना, ठीक हो, ठीक हो। तो मेरे ख्याल में तो फिर आगे डिस्कशन को ही बंद करते हैं, मतलब तो अगले बार ये डिसीजन करेंगे, तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन नहीं, तैयारी के साथ तो भी आनंद जो भेजेगा तो होगा ना तैयारी, आनंद तो के बाकी पास। लोगों को डिपेंड करेंगे ना। देखिए ये चीजें आप लोग डॉक्यूमेंट में हो सकता है किसी क्लाइंट की आपके पास भी पड़ी हो कॉपी अरे नहीं है, हमारे पास अरे नहीं है, सर, ऐसा ना, आनंद जी वही कह रहे हैं, जिसके पास होगा वो शेयर करेगा। हाँ आपके पास जितना जो मैक्सिमम हो आप शेयर कर दीजिए। देखो आनंद को लीगल टीम का हेड इसलिए बनाया गया, वो कुछ को ज्ञान है उसका, तो जो ज्ञानी लोग वो भेजेंगे ना, हम लोग अज्ञानी लोग क्यों भेजेंगे? तो इसलिए आनंद का जिम्मेदारी है। ये तो देखिए प्रैक्टिस वाली बात है, लीगल तो बस सेकेंडरी बात आ जाएगी ना, लेकिन जो मतलब जैसे शासन क्या इशू करके देता चलो है। ठीक, कुल मिला के ये है कि जो मेंबर में जो डिटेल है भेजेंगे, और आनंद थोड़ी ज्यादा जो भी भेज देगा, 2-3 में सभी हम ऑल ओवर इंडिया को मेल करके भेज देंगे, और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे इसे ज्वाइन करने के लिए। और अगले और एडीएम फाइनेंस हो, नहीं तो डीएम हो, या कहो कमिश्नर थोड़ी बिजी ज्यादा रहता है, तो कमिश्नर कमिश्नर से डायरेक्ट मतलब नहीं ना सर ये। हाँ क्यों नहीं, कमिश्नर ना खाली कानपुर कमिश्नर साथ साथ ना वो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री पूरा यूपी देखते हैं, तो इसलिए उनसे थोड़ी कम समय मिलेगा। तो डीएम और एडीएम फाइनेंस दोनों में से एडीएम फाइनेंस को बुला लेंगे फिर, वो तो आ ही जाएंगे। लेकिन उसके पहले कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मिले अपने को। हाँ वो तो अब एक महीना है, अभी 1 महीना है ना, तो अभी 2-4 दिन में आनंद भेज देगा ना। अभी कॉपी किसी क्लाइंट की मिल जाएगी तो वो शेयर करेंगे। सर इसमें एक सजेशन ये है कि आनंद जी इसको भेज दें, हम लोग पढ़ लें, फिर हम लोग अपने एडीएम फाइनेंस से बात कर लें, वो ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बात करके उससे क्या व्यू हमें मिला वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये भी हो सकती है। हाँ एडीएम को भी थोड़ा सा पहले कांटेक्ट करें उसको, ऐसा नहीं कहते लास्ट मोमेंट पे जाएं और वो ना आ पाए। नहीं ना है कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस तो कर सकते हैं ना उनके ऑफिस में। अरे एडीएम फाइनेंस में परसों मिल के आया हूँ, तो जब वो पहले से बोल देगा 2 दिन पहले ही बोल देंगे। हाँ ठीक है और कोशिश रहेगा एडीएम फाइनेंस को बुलाने के लिए, और क्या। ठीक सर, फिर तो मेरे ख्याल ललित अब वोट ऑफ थैंक्स की तैयारी करें फिर हम लोग। ललित, हाँ सेक्रेटरी साहब कहाँ है हमारे?
ललित तो बोर्ड में आई है। नहीं नहीं है कह रहा था अभी जाए। अभी आया था। नहीं, ललित फिलहाल नहीं अब है अच्छा ठीक आगे है, देखो। बोलो भाई। दास साहब वेबिनार में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है सर, इसके लिए भी हेलो। वो करेंगे क्या मेंबर हैं? 11-12 है। आज तो सबसे कम है, 11-12-50 मेंबर भी नहीं है हमारे। सबसे इस बार सबसे कम है। अगले आ गई ना? बार हो जाएंगे। जुड़ के हट गए ना ऐसे। हेलो। हाँ बोलो भैया, हाँ, बोलो हाँ भैया आवाज आ रही है? जी असल आ हम रही आ रही। हाँ उस समय बोल रहे थे हम, लेकिन आप लोग की आवाज आ रही थी कि नहीं है। आए हुए सभी आए हुए मेंबर्स को वोट ऑफ थैंक्स के लिए जो मुझे बोला गया है सर, उसके लिए आज मीटिंग बहुत गर्मा गर्म रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का आने का। और अभी भी ये डिस्कशन अधूरा है सर, हमको लगता है। और देखिए अभी जो है हम लोग और अपडेट होंगे और पेपरों के साथ फिर सब लगता है कि ये पूरा हो पाएगा। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।